what do you think is one great thing about Indian schooling system? One great thing is also the one limitation. The student and teachers are very emotionally connected here. The biggest issue with the Indian schooling system and how that can be improved. But the biggest issue with Indian system was Solving the equations of physics, which I absolutely hated. आपने पता नहीं कैसे किया. I hated. Parabola समझने में इतना टाइम लग गया था क्या होता है. How can parents identify that कि कौन से स्कूल में उन्हें अपने बच्चे को डालना चाहिए? they need to themselves understand वो स्कूल से चाहते क्या है. Why are they sending their child to the school? अभी बहुत सारे स्कूल्स का क्या है, वो जो मोटो होता है ना कि चिल्ड्रन फॉर स्कूल, बच्चे स्कूल में आएंगे और वो करेंगे जो स्कूल के अंदर होता है. तो इसको चेंज करके हमें करना है स्कूल फॉर चिल्ड्रन. तो अगर 6 साल का बच्चा मेरे यहाँ पहली क्लास में आना चाहिए, ग्रेड 1 में आना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली क्राइटेरिया. एंड देन स्कूल के पास भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसकी डाइवर्सिटी को डील कर सके. उन्होंने अपनी डॉटर को ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़वाया 11th-12th में. शी वॉज वेरी गुड इन लिटरेचर. उन्होंने उसको मैथ्स पढ़वाया एंड शी एंडेड अप स्कोरिंग वेरी बैड इन अ ग्रेड 12th एग्जाम्स एंड शी वाज वेरी एंग्री विद द पेरेंट्स. मैं तो कभी नहीं बोलूँगा अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ना. Hi everyone, my name is Shrey Saxena and I welcome you to yet another exciting episode of Impact Podcast Education Series. In this particular episode, we have a very special guest, and this particular guest has covered about various aspects of education. When we talk about education, there has been a lot of confusion and a lot of reforms are also being done in this particular sector. So we thought of having this particular episode. Talking about today's guest, Dr. Vandana Saxena is professor in education working at CIE, Department of Education, University of Delhi, in the field of diversity and inclusion for the last 3 decades. She is a Fulbright alumnus and served as a scholar in residence for the academic year 2022-23 at Mississippi Valley State University. Recently, she represented India in BRICS Civil Forum held in Moscow in July 2024 as a speaker in the special session Transformation of General Education Systems in BRICS countries. Currently, she is engaged in preparing a cross-country report on this theme jointly with colleagues from BRICS countries. I'm proud to share that she is also my aunt. So I welcome Dr. Saxena to the Impact episode Education series. So thank you, Dr. Saxena, for coming to our Impact podcast. So this particular episode is about impact education, wherein we'll try to cover the impact that has been created by you in the field of education and everything that we want to improve in this particular industry. We'll try to cover that. So thank you for accepting our invite. Thank you. Thank you so much for inviting me and for this opportunity. I want to start by, in my very usual way, Namaste Sabiko, or a lot of gratitude to my institution, which is University of Delhi, and of course to my family and my friends. I also, when you say that impact that you have created on the people, I also want to say that it's a collective effort. And I always kind of pay a lot of gratitude to my teachers and my students for creating those kind of challenges. Answering which you just move ahead. So whenever you are in your comfort zone, there will be a teacher who will pull you out and say that, hey, what is happening? Or there'll be a student who will raise a kind of a query or a question where you got to be thinking otherwise, not on the leak. So I think it's a collective effort, but Absolutely. Thank you for the opportunity. So Dr. Saxena, what led to you becoming a teacher? Share the background story. Well, if I say I always wanted to be a teacher, it will be wrong. I never wanted to be a teacher to begin with. I had always thought about a corporate job. And, my education, I finished my college in 89 and my post-graduation in 91. That was the time exactly when this whole liberalization policy had come. There were a lot of privatization was happening across and I was tempted. In fact, in 91, I was part of a nuclear project at JNU. We have a nuclear science center there. That was my specialization in MSc Physics. And I was about to join my research there. At that point of time, B.Ed happened. Bachelor of Education. I got admitted into this, Delhi University. I wasn't very sure about the nature of it, about the institutional reputation. But then I eventually realized that it holds a huge reputation in the entire Asia.
So everyone told me, including my professor, my physics professor, he said, just go over there and, it's a 9 months course, you'll come back and things like that. So during my course also, I used to visit my teacher and I used to tell him, because I was to go back to him for research in nuclear physics. And he said that, you're not coming back to me. And I was like, why do you say that? He said, you've really started kind of, loving. You talk about this course so passionately, so you're not coming back to me. And that happened eventually. I went into my MA program the next year. And it has been a journey since then. So I think 91 onwards, I haven't stopped. I haven't looked back. And I'm happy that I'm here. So it wasn't a kind of a decision to begin with, not a childhood dream, but I'm happy where So is it also, it could be the reason that your father was a teacher, maybe it had something to do with that? Yeah, I think that's very interesting. Not only my father, yeah, of course, he was one of the persons, but a lot of people in my family are teachers, my maternal family as well as my paternal family. A lot of people come from the field of education. So definitely, yes. It's very interesting. I was at a university. I don't want to name the university, so we were sitting on an interview panel. We were selecting faculty members. Assistant professors were being selected. I was part of the selection committee. And, everything finished, everything went off, and the vice chancellor of the university was also there. So after we finished up, he said, by any chance, is anyone in your family a teacher? Okay. So I was like, yeah, I mean, a lot of them, to start with my father and then my maternal uncles, my paternal aunties, and a lot of people in my... That reflects in your behavior, the way you talk to the people. And I think it was a very, very high moment for me. Very, very high moment for me. Mhm. Yes. Wow. So maybe it reflected in your blood. That's why. It really goes into you when you are into that field, This is the family values that you're learning, the way your parents interact with others. You learn to value others, Okay. And so, yeah. And especially if you are with teachers who have not been beating around the kids and doing all that stuff. But you can be with the teachers who are beating around the kids also. So you'll grow up differently. Yeah. Okay. So if I ask about that one teacher who has made the, created the most impact in your life, who is that person? Very difficult. Very difficult. But if I have to name one, I'll name my history teacher from school? grade 9th and 10th. Okay. I was there, and he was the principal of the school, Shri Govind Ji. And I don't know how he taught history, but I just fell in love with history, the way he taught us. And it was all a very difficult part of it, the First World War, Second World War, and all those kind of stuff. So I think he was one of the teachers who has created that kind of an impact on me. I also want to talk about my professor, Professor Krishna Moitra. She has also made a lot of impact on my life. She's my PhD supervisor, and we are connected, forever, guys, 92 onwards. Oh, wow. So it's a long journey coming along together. A lot of other people, have impacted, but yeah. Okay. So you have been a teacher at Indian schools, university. In fact, you were a teacher at a university in the United States as well for some time. Starting with schooling in India, what do you think is one great thing about Indian schooling system? One great thing is also the one limitation. The student and teachers are very emotionally connected here. Okay. Which is positive, because that's what keeps the students in the classroom. But that sometimes also, make you weaker, and, you are not able to lead your kids to harshly tell them, no, you have to do this because it's good for you. So I think it goes in a balanced manner. But yeah, that kind of compassion that you find in Indian education, that is something which is superb. So if we specifically talk about schools, like, I think I completely resonate with you. I personally I was, emotionally connected with few teachers during my school time. So that is one, in fact, interesting thing that you highlighted. And you also told the downside of it, that what if my favorite teacher, gives me wrong marks or low marks? Yeah, not wrong marks, but it's like sometimes they pamper you, and, I'm just trying to say, I'm not trying to say that Correct. teachers who are compassionate are not honest, but sometimes, they might give you that leverage. Okay, it's okay, you may not do that. So I won't tell that teacher, but yeah. So me and my friend, we wrote the same test
Okay, but because I had a better impression on that teacher, I got better marks. Because we literally copied everything from each other. He got lower marks. So I think that was one advantage, that yes, if you are in good books of the teacher, maybe it helps. No, I want to quote a similar episode. I was in grade 7 at that time, Okay. and I very categorically remember this. So this peer of mine, this classmate of mine, she was sitting behind me, and her mother was a librarian in another adjacent school. So I'm talking about a government school system. So this girl apparently copied, not me knowing about it, but she copied ditto. She got less marks. Her mother came fighting with the teacher, saying that this girl has copied this girl's thing and you've given less marks. I mean, I was very young, but I still remember this. And then my teacher opened up. I still remember the name of the biology teacher also. She opened her both the notebooks. She said, "Ma'am, you read yourself and then you tell me." So आई थिंक चीटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा टैलेंट चाहिए होता है. वो टैलेंट नहीं था उस छात्रा में. So it just got the other way around, and she said, "अच्छा ठीक है" types, so it was dispersed. So interesting. Maybe it was not the favor. Maybe he didn't copy you ditto. Maybe. Okay. So Dr. Saxena, tell me the biggest issue with the Indian schooling system and how that can be improved. I think it is something which has been addressed in the new education policy which came in 2020. But the biggest issue with the Indian system was a lot of rigidity. There was a lot of compartmentalization, like you can either do this or you can't do that. So in that whole kind of grid of subject options and how they have to do a particular kind of mathematics only, how there is no escape from physics. If you want to do biology and chemistry, you got to be doing physics also alongside, because those are the kind of combinations. थोड़ा सा simplify करेंगे कि कैसे compartment, like क्या buckets बनी हुई थी, subjects हमें force करे जाते थे, starting से हमें choose के options दिए जाते थे. थोड़ा सा simplify करके बताएंगे. Actually, system में अभी तक क्या था कि लाइक 5th क्लास तक इट्स प्राइमरी एजुकेशन, तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं एंड यू हैव टू स्टडी देम. 6th 7th 8th में लैंग्वेज को लेके कुछ हमारे को ऑप्शंस मिलते थे कि आप ये वाली लैंग्वेज ले सकते हैं, ये वाली छोड़ सकते हैं. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता था उसके अंदर. प्राइमरी एजुकेशन अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो या तो हिंदी में थी या अंग्रेजी में थी. माध्यम यही थे लैंग्वेज के, मीडियम्स यही थे उसके अंदर. उसके बाद जब हम 9th क्लास ऑनवर्ड्स जाते थे तो 9th और 10th में हमारे पास एक बहुत ही फिक्स्ड काइंड ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते थे कि मैथमेटिक्स आपको यही वाला लेना है, सोशल साइंस में आप ये पढ़ेंगे, लैंग्वेज में आप यही पढ़ेंगे. तो इस तरह का एक फिक्स स्ट्रक्चर था. और 11th एंड 12th में जाके ये फिक्स स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा रिजिड हो जाता था कि आपको 3 में से कोई एक स्ट्रीम चूज़ करनी है. तो या तो आप कॉमर्स लेंगे या ह्यूमैनिटीज़ लेंगे या साइंसेस लेंगे. साइंस में आप या तो मेडिकल लेंगे या आप नॉन मेडिकल लेंगे. तो अगर आप मेडिकल ले रहे हैं तो बायोलॉजी होगा, नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो उसके अंदर मैथमेटिक्स होगा. तो इस तरह के चॉइसेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी. अभी पॉलिसी के बाद क्या हुआ है, जो कि आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे. क्या पॉलिसी है? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो रेटिफाई हुई, जिसके तहत अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है. उसके कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल, प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में होगी, उसकी होम लैंग्वेज में. तो इससे अभी फिलहाल जब हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर 22 हमारी लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, प्लस 23rd लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश. तो सभी माध्यम में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जब बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा, छोटा बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, यदि उसका टीचर उससे किसी और भाषा में बात कर रहा है, उसकी किताब यदि किसी और भाषा में है, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर जिसको हम बोलते हैं एक मिसफिट होता है, बच्चे का कनेक्शन वहाँ से स्कूल से लूज होता है. तो टू बिल्ड दैट हेल्दियर स्कूल होम कनेक्शन ये चीज़ आएगी, जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी भी और बढ़ेगी. हमारे पास का जो डेटा था, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ डेटा विच इज कलेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा था कि प्राइमरी स्कूल के बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होता था. उसका रीज़न ये था कि बच्चा स्कूल के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा. तो भाषा उसके अंदर एक मेन, एक जिसको बोलते हैं हम फैक्टर बन के सामने आया.
तो उस चीज़ को अकाउंट फॉर किया गया। हालांकि अभी ये डिबेट चल रही है कि यदि आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे या उसके होम लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो आगे चल के उसका क्या होगा, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है वो सब तो अंग्रेजी माध्यम में ही है। तो उसको भी बारे में चर्चा हो रही है। पिछले ही साल 10 यूनिवर्सिटीज़ ने 10 लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे तमिल, कन्नड़ा, इस तरह की हिंदी, इन्हीं सारी और भी बहुत सारी 10 भाषाओं में ये प्रयास किया कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल का सिलेबस बनाएं। तो माध्यम को लेके एक जो चीज़ है वो इस तरह से हैंडल की गई है पॉलिसी में। उसके बाद 9वीं से लेके 12वीं तक अब छात्रों को 9 से 12 तक एक ओपननेस है कि कौन सा विषय वो चुन सकते हैं। यानी कि ये हो सकता है कि कोई छात्र बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो फिजिक्स में भी और म्यूजिक में भी, तो वो फिजिक्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन लेके आगे चल सकता है। उसको ये बाध्यता नहीं है कि उसे केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ना है और उसे मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, थिंग्स लाइक दैट। तो उस तरह की ओपननेस का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सेम लेवल चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी। कि अब म्यूजिक वाला एक स्टूडेंट, मतलब आई एम जस्ट रैंडम दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ म्यूजिक एंड फिजिक्स ऑल द टाइम, बट दे लुक लाइक वेरी डिफरेंट डिसिप्लिन्स, तो म्यूजिक में जो व्यक्ति मेजर कर रहा है अपना, वो अपना माइनर में एक पेपर फिजिक्स का ले सकता है, क्वांटम फिजिक्स का ले सकता है। तो आई थिंक वो वाली जो उसको फैसिलिटीज मिली है जिस तरीके से, अभी हम लोग उसके इनिशियल पॉइंट पे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग इश्यूज हैं उसके अंदर। हमें बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है। फॉर एग्जांपल करियर ऑप्शंस कैसे जाएंगे, किस तरीके से, क्या उनकी एलिजिबिलिटी में भी किसी तरह का बदलाव आएगा या कुछ होगा। तो ऑल दैट इज बीइंग वर्कड आउट एट दिस मोमेंट एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। मतलब क्योंकि स्कूल से आपकी एडुकेशन शुरू हो जाती है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये प्राइमरी एडुकेशन से लेके आपकी हायर एडुकेशन से लेके फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड फर्दर मोर, ये पूरा इंटरकनेक्टेड ही है। एब्सोल्युटली। तो ये जो एनईपी आपने पॉलिसी बताई, वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? हैज इट बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड येट? Yeah, see, that depends upon the institution also. For example, the policy was introduced in 2020. Okay. Delhi University ने अपना अंडरग्रेड करिकुलम पूरा 2022 में बना लिया। तो 2 साल के अंदर वी हैव अ कंप्लीट करिकुलम इन प्लेस। और हमारा फर्स्ट बैच जो एनईपी करिकुलम के तहत पॉलिसी को के ग्राउंडेड, उसमें ग्राउंडेड होता हुआ जो करिकुलम का हमारा जो पहला बैच जाएगा 2026 में जाएगा, वो पास आउट होगा वो बैच। तो अदर यूनिवर्सिटीज आर ट्राइंग टू डू दैट। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, बट ज्यादातर प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया है हायर एजुकेशन ने। स्कूल्स के अंदर हायर एजुकेशन इट्स 9 to 12? No, higher education for us will be post 12th. Post 12th, okay. Tertiary, secondary then tertiary. Okay. CBSE के बारे में अगर हम बात करें, जो एक मेजर एफिलिएटिंग बोर्ड है हमारी कंट्री के अंदर, उसके अंदर फ्रीडम पहले से थी। CBSE ने कभी ये नहीं कहा कि आप इस तरह के ऑप्शंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्कूल्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग के तहत, बिकॉज दैट बिकम्स मोर इजी फॉर देम, तो वो उस तरह के ऑप्शंस चल रहे थे। और फिर समहाउ हमारे जो करियर ऑप्शंस हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ लुक्ड एट लाइक दैट। बट नाउ इट इज द स्कूल्स आर बिकमिंग मोर ओपन माइंडेड, सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो पहले भी इंट्रोड्यूस थे स्कूल सिस्टम में, अब वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अमंग्स स्टूडेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं इन टाइम टू कम। सो इफ़ यू से दैट हम किस पॉइंट पर हैं इस समय इम्प्लीमेंटेशन के, सो आई वुड से वी आर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट अभी 3-4 ही साल हुए हैं, तो इम्पैक्ट। सो इज इट सेफ टू से जो ये अभी न्यू पॉलिसी आई है, इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी तो है ही, एट द सेम टाइम जो को करिकुलर्स हैं उस पर भी एम्फसाइज है। It's not about just what you are studying in the classroom, but also what you are learning outside it. So is it very much? In fact, policy बोलती है co-curricular जैसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, okay. Everything that you're doing is curricular. Curricular, okay. Even when you are in the field, you're playing with somebody, it's curricular. You are learning that sport, or you are learning the
team spirit, you're learning the soft skills like collaboration, conversations and all that. तो according to the policy, जो एक बहुत ही founding principle है policy का, कि subjects के बीच में कोई hierarchy नहीं है. Okay. जो भी आप स्कूल के अंदर कर रहे हो वो सब equally important और significant है. Okay. तो So whether it's sports, whether it's music, whether it's solving the equations of physics, which I absolutely hated. आपने पता नहीं कैसे किया. I hated. पैराबोला समझने में इतना टाइम लग गया था, क्या होता है. But yeah, I think this is a very welcome move and इतना revolutionary step काफी टाइम बाद I believe आया है, क्योंकि I passed my school in 2014 and I believe that for a very long time कुछ change ही नहीं था. In fact, I believe that I was never a classroom kid myself. I was always looking for opportunities outside because I felt कि सिर्फ या 10-12 subjects तो नहीं हो सकते मेरी life में सीखने के लिए. There could be more, especially if you don't like those subjects. So I believe, yes, this shift in education was very much required and it is now happening. So it feels good to know that. I want to add one more point here which will be helpful, Sure. you know, that the policies has redefined the purpose of education also. तो पहले जो पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारा होता था वो ये होता था कि हम पढ़ेंगे और हम इस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट जॉब, यू नो. समवेयर डाउन द लाइन बड़ा ही कॉलोनियल कॉन्सेप्ट था ये, जो यू नो आया विद समथिंग कॉल्ड मैकॉले मिनट्स. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट. बहुत ही कॉलोनाइजिंग कॉन्सेप्ट था बिकॉज देयर आइडिया ऑफ प्रपोजिंग दोज काइंड ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रिपेयर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू नो, यहाँ पे उनकी गवर्नेंस चलाने के लिए कौन लोग होंगे. समहाउ जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आते हैं, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में आते हैं, तो वहां पर भी माइंडसेट वही रहता है कि एजुकेशन करके फिर नौकरी मिलेगी, फिर हम आगे जाएंगे. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आई विल नेवर से कि एजुकेशन करने के बाद हमको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है. बट इसमें एक जो नया पार्ट ऐड हुआ, जो एक नया पर्पस को जो डायमेंशन ऐड हुई, वो ये डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल 12 साल स्कूल में रहने के बाद भी हो सकता है उसके कुछ एस्पेक्ट डेवलप ना हो. तो हायर एजुकेशन में भी हम लोग अब एक पूरा कंपोनेंट है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज. तो ये कोर्सेज बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, जिसमें वो डांस ड्रामा भी सीख रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स वो उसके अंदर सीख रहे हैं जो कि शायद उनको पहले मौका नहीं मिला, बावजूद इसके वो 12 साल स्कूल में थे. और स्कूलों में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक अलग तरीके से ऐड हो रही हैं और लोगों का माइंडसेट जो है वो बदलने में प्रयास हो रहा है. तो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो एक व्यक्ति को एनेबल कर सके कि वो अपनी लाइफ को खुद डिफाइन कर सके, वो रिबेलियन ना हो जाए, उसको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बट एट द सेम टाइम उसको अपना पर्पस ऑफ लाइफ वो सोच सके आगे चल के. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऐड हुआ है. तो बेसिकली एक्सपोजर उसे मिलना चाहिए, उसे क्या करना है फिर उसके बेस पे डिसाइड कर सकता है. अगर एक्सपोजर ही लिमिटेड है सो वो सोचने की क्षमता ही नहीं आ पाएगी स्टूडेंट में कि अच्छा इसके अलावा ये भी तो हो सकता था. जो बहुत टाइम लोगों के साथ होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है अरे ये भी तो होता है, ये भी तो हो सकता था. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. और यही चीज अगर एक स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ में ही फिगर आउट कर ले, सो रादर देन यू नो मेकिंग स्कूल लाइफ अबाउट स्कोरिंग गुड मार्क्स, if it is made about identifying oneself, I think कितने सारे you know lives and time बच सकता है. Absolutely. So I think that is very much commendable if that kind of revolution can happen, and I believe that it will happen. Fingers crossed. We are looking forward to a very positive change. Interesting. So डॉक्टर वंदना, एक बहुत क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का, बिकॉज पेरेंट्स आर वेरी फिनिकी यू नो अबाउट देयर चिल्ड्रन. उन्हें ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है. व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन, सो हाउ कैन पेरेंट्स आइडेंटिफाई दैट कि कौन से स्कूल में उन्हें अपने बच्चे को डालना चाहिए? Of course, इसमें there are constraints of fees, brands of schools, you know, distance from their home and all these things. But fundamentally, what do you think a parents should look for before they, you know, get their admission done for their children in an XYZ school? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली बिकॉज ऑप्शंस अभी बहुत सारे ओपन है हमारे पास ना. इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो ओपन है. मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को थोड़े से वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग द स्कूल. आई मीन लाइक पेरेंट्स आर गोइंग टू किल मी फॉर दिस, बट आई रियली वांट टू से दैट दे नीड टू देमसेल्फ अंडरस्टैंड वो स्कूल से चाहते क्या है. व्हाई आर दे सेंडिंग देयर चाइल्ड टू द स्कूल, राइट?
जब आप एक बार ये पहचानते हो कि आप स्कूल से चाहते क्या हो, तो फिर आप उसके बारे में फिर सोच सकते हो, फिर आपके लिए स्कूल चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने ये ब्लैक शर्ट पहनी है, आपको वो ब्लैक शर्ट चाहिए थी, आपको एक तरीके की आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ, चलो मुझे ऐसी होनी चाहिए, उसका बटन ऐसा होना चाहिए। सो यू वेंट विद अ पर्पस। फिर आपने एक मल्टी ब्रांड में गए, आपको जो दुकान में पसंद आया, आपने उसको खरीद लिया। तो आई थिंक ये आइडिया की क्लैरिटी होना कि एजुकेशन से हम चाहते क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। देयर आर पेरेंट्स हु कम बिकॉज़ हम स्कूल के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं और काफ़ी काम करते हैं स्कूल के साथ। तो स्कूल में पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग में दे विल से कि मैडम आप मारो मेरे बच्चे को, नहीं मान रहा तो, है ना? तो ये एक बहुत ही अनकॉल्ड फॉर काइंड ऑफ थिंग है कि वो उस चीज़ को उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया कि आप मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आई मीन लाइक यू गॉट टू बी प्रोटेक्टिव। वहीं पर एक अलग सेट ऑफ पेरेंट्स होगा जो बोलेगा कि आपने मेरे बच्चे को टच भी कैसे कर दिया ना, आपने उसको डाँटा, को होमवर्क Correct. नहीं था तो क्या है? तो ये 2 पोलैरिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इस पूरी पोलैरिटी के बीच में वो स्पेक्ट्रम ऑफ पेरेंट्स है जो स्कूल के अंदर होता है। सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल के लिए, और स्कूल्स को भी मुझे लगता है इफ दे काइंड ऑफ बिकम अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, तो वो हर तरह के पेरेंट्स को भी फिर अकोमोडेट कर पाएंगे। Okay. अभी बहुत सारे स्कूल्स का क्या है, वो जो मोटो होता है ना कि चिल्ड्रन फॉर स्कूल, बच्चे स्कूल में आएंगे और वो करेंगे जो स्कूल के अंदर होता है। तो इसको चेंज करके हमें करना है स्कूल फॉर चिल्ड्रन। Okay. जो भी बच्चा स्कूल में आ रहा है वो वेलकम है, और हम इसको एक बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इसको डील करेंगे। मेरे से जब लोग इसके एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो मैं कई बार ऐसा पूछती हूँ, मैं कहती हूँ जब हम एक बैंकर के पास जाते हैं तो वो हमें ये नहीं बोलता कि आपका नोट जो है करेंसी नोट वो फलाने साल का छपा हुआ है, इसकी हालत ऐसी है, वो जस्ट टेंडर वैल्यू देखता है ना, वो कहता है हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड। तो अगर 6 साल का बच्चा मेरे यहाँ पहली क्लास में आना चाहिए, ग्रेड 1 में आना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। एंड देन स्कूल के पास भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसकी डाइवर्सिटी को डील कर सके, उसके साथ जाके आगे काम कर सके, और वो जो बात हमने पहले करी कि बच्चे को मदद कर सके कि वो अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई कर पाए। Correct. और पेरेंट्स को लेकर इसके अंदर बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं मैडम मैथ्स पढ़ाना तो बहुत जरूरी है। आई नो ऑफ दिस वेरी एजुकेटेड पेरेंट्स एंड उन्होंने अपनी डॉटर को जबरदस्ती मैथ्स पढ़वाया 11th-12th में। शी वाज वेरी गुड इन लिटरेचर। उन्होंने उसको मैथ्स पढ़वाया एंड शी एंडेड अप स्कोरिंग वेरी बैड इन अ ग्रेड 12th एग्जाम्स, एंड शी वाज वेरी एंग्री विद द पेरेंट्स बिकॉज कि मैं मतलब मैं लिटरेचर में अच्छा कर सकती थी, आई कुड हैव गॉन टू ह्यूमैनिटीज एंड डन बेटर। तो ये पेरेंट्स के दिमाग में भी जो है ना कि भैया मैथ्स और इंग्लिश तो जरूर पढ़ना है, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है डील करना है। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ना। hated every bit of it. No, for that I think for that I would like to say that you got to be meeting teachers, and mathematics have to be made more fearless. ये जो fear आ रहा है लोगों के अंदर मैथ्स को लेके, we need to identify that and work on it. Okay. तो वो भी एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत काम कर रहे हैं लोग जी। Very nice. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब आई बिलीव ये क्वेश्चन मार्क है। Parents want to admit their children to a private school but a government college. Yeah. But Why not is that? always. No, I'll tell you. In a lot of I'll cases. tell- Why is yeah. that? ऐसा क्यों है? Well, these are myths about education, है ना? हमने ऐसा मान लिया है कि प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट स्कूल है वो बेटर एजुकेशन दे रहा है। बहुत सारी जगह ये भी माना गया कि माध्यम, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी होता है तो वो एक बेटर मीन्स है। मतलब मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ये कॉलोनाइज्ड माइंड का इंडिकेशन है कि हम इस तरह से बात करते हैं। 1964-66 which is very close to our independence, पहला कमीशन बैठा एजुकेशन में, कोठारी कमीशन के नाम से, और उस पर हमारी पहली एजुकेशन की पॉलिसी आई 1968 की। बहुत ही सिग्नेचर फीचर था उसका, दैट वाज कॉमन स्कूल सिस्टम। उसमें वो कहते हैं कि एक स्कूल होगा और अगल बगल के जितने भी लोग होंगे ना, उनके बच्चे उसी स्कूलों में जाके पढ़ेंगे। तो इट वाज स्कूलिंग को क्लास से अलग किया गया। स्कूलिंग विल नॉट बी क्लास ओरिएंटेड, तो फी पैकेज ही होगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 8वीं क्लास तक तो हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए वो सब कुछ हुआ। तो आप देखेंगे मेरी फैमिली में हम सारे ही भाई बहन जो हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता हमें किसी तरह की परेशानी हुई। या हमारे जो कोलीग्स, हमारे पीयर्स थे, वो लोग सब हमारी बैचमेट्स थे, तो एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल।
वो कोई मसला था नहीं हिंदी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने का। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट की तरह सामने आता है। फिर 91 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी जिसने प्राइवेटाइजेशन ने जिसने एजुकेशन को भी इम्पैक्ट किया और Okay. बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आने यहाँ पर शुरू हो गए, ठीक है। तो स्कूल के अंदर पहले कुछ फिलंथ्रोपिक सोसाइटीज थी, जैसे कैम्ब्रिज था या डीपीएस था, ये सोसाइटीज थी, बाल भारती, ये पुराने एजुकेशनल ट्रस्ट हैं। इन लोगों के स्कूल्स पुराने टाइम से चल रहे थे, क्या, पर तो इसमें फीस स्ट्रक्चर भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो आपको उस तरीके से वो मनी ओरिएंटेड नहीं था वो पूरा वेंचर। इट वाज जस्ट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। किसी का फिलंथ्रोपिक व्यू था, उन्होंने उसको कर दिया, एस्टैब्लिश किया स्कूलिंग को। लेकिन हम जब आगे जाके हम उसको देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो जो प्राइवेटाइजेशन के साथ फिर फीस स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हुआ, देन एजुकेशन ऑल्सो बिकेम अ बिजनेस। तो वहां पर देयर वाज लॉट ऑफ शोबिज दैट स्टार्टेड हैपनिंग ना, कि अब क्लासरूम्स जो है वो एक टिपिकल तरह के होंगे या इस तरह का होगा। पीपल फेल्ट कि अब मेरा बच्चा ज़्यादा कंफर्ट में पढ़े, और बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा बच्चा शुड गो टू अ इंग्लिश मीडियम बेटर स्कूल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये आइडिया पूरा एक मार्केटिंग का आइडिया था जिसने ग्रेजुअली इम्पैक्ट किया गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को भी, और प्राइवेट लॉबी जो थी वो उसके साथ में पैरेलल आके खड़ी हुई। अब प्राइवेट स्कूल के अंदर यदि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको वेल पेड टीचर्स लेकर आएगी। वेल पेड टीचर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसा और क्वालिटी कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग तो आपको वही मिलेंगे ना, वो आपके लिए आप यू हैव टू पे फॉर देम। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये प्रॉब्लम या ये इशू रहता है जब वो बहुत ही लो मनी पेड होते हैं, मतलब जो उनकी सैलरीज होती हैं वो बहुत लो होती है, तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स may not be great over there. Now cut to you come to higher education because you want to have that kind of a comparison. Sarkari institution will always have a well qualified teacher. सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी यूनिवर्सिटी कभी भी, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो कभी भी विदाउट क्वालिफिकेशन एक टीचर को अपॉइंट नहीं कर सकते। उनका पूरा प्रोसेस है। स्कूल में नहीं है ये, गवर्नमेंट स्कूल्स में है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जाने का अलग रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो दे आर पेइंग वेल, पेइंग वेल मतलब हमें स्केल्स ही देने हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई किसी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तरह का उनको सिस्टम है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम प्लानिंग का एक सिस्टम है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जो प्रेफरेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाने की होती है हायर एजुकेशन में, वो इसीलिए होती है कि वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, वो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं कर रही है, और वो इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं है जितने ज़्यादा नंबर्स में प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो वो जो रीच है वहाँ पे लोगों की, वो थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती है। तो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है कि इफ़ यू आर एबल टू, अच्छा जितने भी आपको, जब आप रैंकिंग देखोगे तो जितने भी रैंकिंग में आपके इंस्टीट्यूशंस आएंगे वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, सारे पब्लिक होंगे। मतलब पब्लिक से हमारा मतलब होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो हायर एजुकेशन में तो it is always there. So the quality, the impact, the fee structure, despite the fact हमारे बहुत सारे government sponsored organizations हैं जो high fee structure में भी होंगे, but you know comparatively they are very very different from each other. I completely agree that marketing has been done for private schools. There has been a strong lobby, which is constantly promoting that we are better than government schools, and of course the kind of people coming to government schools now has been equated to class, कि वहाँ पे वो जा रहा है, एक लेबर जो लेबर काम कर रहा है उसका बच्चा जा रहा है, तो वहाँ पे हम अपने बच्चों को क्यों भेजें? At the same time, the problem I have with a lot of private schools is that if we are paying so much premium to the school, why are we sending the children to tuitions again? Why is it happening? That's because that's something which parents need to understand. I'm again telling you that, we are sending children to school for a purpose because it carries a brand value that my child, मतलब हम लोग तो ये हंसते हैं इस बात में कभी कभी कि बच्चे के आने से पहले ये डिसाइड हो जाता है, पैदा होने से पहले कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा। तो वो वाला जो एक सिचुएशन है, और ट्यूशन में बच्चा क्यों जा रहा है,
ट्यूशन में बच्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि स्कूल के अंदर तो स्कूल सब कुछ करवाएगा ना। स्कूल आपको 11th-12th में भी ये बोलेगा बेटा एनुअल डे में भी पार्टिसिपेट करो। स्कूल आपको देख रहा है एक ग्रोइंग अप एज इन टोटलिटी होलिस्टिकली। या लेकिन अगर आपका पर्पस एक पर्टिकुलर जगह पे इंक्लाइंड है, वो एस्पिरेशन जो है पेरेंट की, वो ट्यूशन सेंटर्स को बूम देती है ओके कि यू नो दिस इज व्हाट विल हैपन। ओके तो एस्पिरेशन, मिडिल क्लास की एस्पिरेशन को एक्सप्लॉइट करता है ट्यूशन सेंटर का सिस्टम। गॉट इट। और उसको, और हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब उस जगह पे चला जाए, मेरा बच्चा वहां पे पढ़ ले, क्योंकि ये दिमाग में अभी भी यही हमारे सोशल स्ट्रक्चर में है कि यदि बच्चा इस तरह के प्रोफेशन में जाएगा, आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज फिर मैं स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करूंगी, कि अगर मेरा बच्चा ऐसा बन जाएगा तो फिर यू नो आई कैन, ही और शी विल हैव अ वेरी बेटर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट फॉर देम। तो आई थिंक वो ट्यूशन सेंटर का जो पूरा फोकस है, वो पूरा का पूरा जिसको हम बोलते हैं, और अब तो आप पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, 8वीं क्लास से लोग जाने लगे हैं आईआईटी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। आई डोंट वांट टू अगेन नेम द इंस्टीट्यूशंस बिकॉज फिर वी डोंट वांट टू बी काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट देम, बट सो क्यों 8वीं क्लास का बच्चा जा रहा है? क्योंकि वो पेरेंटल एस्पिरेशन है, जिसको वो ट्यूशन सेंटर कह रहा है कि नहीं अभी 11वीं 12वीं को ही क्यों लेते थे, अभी नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। इनफैक्ट मुझे अभी रिसेंटली पता चला बिकॉज वन ऑफ माय कजिन्स हैव स्टार्टेड टू गो टू सिमिलर ट्यूशंस दैट देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डमी स्कूल्स that has been created. Sir, absolutely. That's that they are just marking the attendance, the child is going to the tuition and सिर्फ एग्जाम देने के लिए and वो CBSE का या जो भी बोर्ड है उसका थप्पे के लिए अब आ रहे हैं. So I think there's some fundamental, it's fundamentally wrong, which I personally believe, and I hope that you know this gets changed with time. And see, dummy schools का concept भी वहीं से आ रहा है जहाँ से मैं आपको बात कर रही हूँ ना, एस्पिरेशन से आ रहा है. देखिए, I'll tell you, it's an out of context example, but I'll give you that. I visited Australia with my husband. This was 2010, way back. तो हम लोगों के पास मोबाइल फोन तो था, लेकिन उसके अंदर फ्रंट कैमरा होता था. ओके, तो हम वो फ्रंट कैमरे को ऐसे एडजस्ट कर करके ना हमने अपने फोटोज खींचे कि हाँ ठीक है, मतलब हम किसी तरह से उसको फोटो को ले रहे हैं. बट ग्रेजुअली अभी हमारे पास सेल्फी कैमरा है, सेल्फी कैमरा में 4 और चीजें हैं, बिकॉज हमने एक नीड जनरेट करके दिखाया ना मार्केट को कि भाई सेल्फी भी खींचना जरूरी हो. कोई बंदा हमेशा ग्रुप में ही नहीं जा रहा होता, किसी को अकेले भी खींचनी होती है. तो वो वाली बात को समझते हुए लोगों ने डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट आया. डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट आप अभी देख रहे हो, मैं इस कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट 15 साल से जानती हूँ. अच्छा, ठीक है. अब ये ज्यादा प्रिविलेंट हो गया. क्यों? क्योंकि हर किसी को यही लग रहा है कि 11th-12th में हम टाइम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो स्कूल के साथ जो एक फैक्टर अटैच हो गया है विद एम्बिशन ऑफ द पेरेंट एंड द चाइल्ड ऑल्सो एट टाइम्स, दैट इज द टाइम फैक्टर. ओके, अब वो स्कूल में जा रहा है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है. रैंडम एग्जाम्पल दिया मैंने आपसे, है ना. 3 घंटे में पढ़ लेगा, बट स्कूल उसको वहां बैठा के रखता है 8 घंटे, 5 घंटे करेगा, फिर कुछ और भी काम कराएगा, फिर ये भी काम करेगा. तो लोगों के पास समय तो है नहीं आजकल. करेक्ट. तो उनको ये लगता है कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म मिल जाए. तो पहले ये स्मॉल स्केल पे चलता था डमी स्कूल, अब ये बहुत ज्यादा लोगों को पॉपुलर हो जाती है ना धीरे धीरे तो वो पॉपुलर हो जाता है. तो मुझे एक बड़े हाई एंड प्राइवेट स्कूल ने बुलाया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए. अच्छा. तो द प्रिंसिपल टोल्ड मी कि आप मैडम डमी स्कूल की बात नहीं करोगे, यू विल नॉट मेंशन द टर्म. ओके, वरना पता लग जाएगा लोगों को. स्कूल का बेनिफिट बताना है कि बच्चा स्कूल में क्यों आए, रेगुलर स्कूल में क्यों आए, है ना, विदाउट टॉकिंग अबाउट दैट. तो देन वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन. मैंने पेरेंट्स को पूछा, आपको याद है आपके 11th-12th में कौन आपके दोस्त थे, साथी थे? हम तो भूल गए थे, लेकिन फेसबुक ने कनेक्ट किया. फिर मैंने उनको वीडियोस दिखाई वो वाली. हम लोग 34 साल बाद मैं अपने स्कूल ग्रुप से मिली. 86 में 12th किया था मैंने. और हम लोग कहाँ पहुंच गए और क्या किस तरह की वाइब सेम थी, है ना. मैंने बोला ये सब आपका बच्चा मिस कर देगा अगर वो 11th-12th में उसके पास एक पूरी पीयर ग्रुप नहीं होगा. आज आपने उसको यहाँ से अपरूट कर लिया ना सिस्टम से, तो आप उसको सोशली एक बड़ा ही एलिनेटेड ह्यूमन बीइंग बना के आप उसको आगे लेके जाओगे. अब मुझे नहीं पता ये बात कितने लोगों को समझ में आई होगी, बट स्कूल एक सोशल स्ट्रक्चर है. Correct. वो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आप बहुत कुछ सीखते हो. आप इतनी सारी सॉफ्ट स्किल्स सीखते हो, आप इतना कुछ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना. और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल एक नेटवर्किंग का भी स्पेस होता है. 11वीं 12वीं में आप जिन बच्चों के साथ पढ़े हो, जो मतलब
एकदम पढ़ते चले आ रहे हो, पर उधर आके तो एकदम ही ग्रुप जो है वो बन ऐसे जाता है, लोकलाइज हो yes. जाता है, 30-40 स्टूडेंट्स की आपकी एक क्लास होगी, सबका सिमिलर मोटिवेशन है। एंड देन जब आप 10 साल बाद वापस मुड़ के देखते हो ना, मतलब आप भी देखते होगे, आपने कहा yeah. 2014 में हो गया, तो 10 साल में कौन कहाँ पहुंचा कैसे, तो इतना वर्सेटाइल होता है कि फिर अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो अपना ही डॉक्टर होता है बात करने के लिए, घर में किसी को कुछ और चाहिए होता है तो वो होती है चीजें। तो आई थिंक वो जो सोशल बॉन्ड बनता है 11th एंड 12th में, वो बहुत इंपॉर्टेंट And that होता is है। important, yeah. तो ये चीजें अगेन पेरेंट्स को पता होना कि बच्चे का करियर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको मत करिए। डमी स्कूल्स के ऊपर इनफैक्ट गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ पॉलिसी नाउ। They have Okay. taken that into account and they're very seriously considering what do they need to do about this, because Okay. तो वो most probably मुझे लगता है affiliations वगैरह के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये सारे प्राइवेट स्कूल्स ही हैं जहाँ पे डमी स्कूल चल रहा है। Okay. ऐसा तो है। And I think they are also motivated by big tuition mafias and tuition centers, is it? माफिया वर्ड नहीं यूज करूंगी बिकॉज उनके लिए तो काम है Okay. है ना, और वो एंड मेनी ऑफ देम आर डूइंग वेल आल्सो। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ बी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट, बट हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के साथ क्या करना चाह रहे हैं और हम उसको कैसे कल के लिए तैयार कर रहे हैं। व्हाट इज द टुमारो दैट वी आर डेवलपिंग आवर चाइल्ड टू बी। मेरा विजन मेरे बच्चे के लिए क्या है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहे हैं, जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजीज खोल रहे हैं। इट इज फॉर देम इट इज बिजनेस, फॉर अस फॉर मी माय चाइल्ड कैन नॉट बी अ कमोडिटी। Yeah. In fact, abhi recently I was having a conversation with one of my friends. मैंने कहा that it's interesting to note that एक बच्चे को या एक पेरेंट को aspiration बेचना, that this person will go to an X institute if they do this, is a bigger business than actually sending that person there. Absolutely. So absolutely so. interesting. And a lot of these things are being sold on aspiration basis. Yeah, aspirations. And, and aspiration again वही है क्योंकि miscommunication and lack of information about what my child can do. Correct. है ना, तो हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह की चीजें आगे ओपन अप हो गई हैं। तो यही चीज अगर हमें स्कूल में बता दी जाए या हमें एक्सपोजर मिल जाए, सो दैट द चाइल्ड एंड देयर पेरेंट फॉर दैट मैटर इज एबल टू आइडेंटिफाई कि उसे 12वीं के बाद करना क्या है। Absolutely. So I think that will solve a lot of problems. Yes. Lot of problems. Yeah. 10th class onwards, career fairs start to Yeah, yes. And that is, I went to this, you mentioned about me teaching for a short while, 2 semesters in US also. Yeah. तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एक करियर फेयर लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड दैट इज इन एवरी यूनिवर्सिटी, नॉट दैट स्पेसिफिक टू माय यूनिवर्सिटी ओनली। और वहाँ हाई स्कूल के बच्चे दे कम टू दैट फेयर। ओके। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं। अच्छा। एंड द चिल्ड्रन अंदर द स्कूल किड्स विल कम ओवर देयर, उनका हाई स्कूल डे होता है, वो सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं, दे विजिट वन प्लेस एंड अदर। अच्छा क्या करना है अभी, आप क्या पढ़ाते हो, उससे आगे नौकरी कहाँ मिलती है। तो दे कमिंग टू द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली एंड दे टॉकिंग अबाउट इट। करियर फेयर में होता क्या है, दिल्ली के अंदर अभी स्कूल्स में जो मैंने देखा है कि डिफरेंट जो या तो जो लोग अब्रॉड भेजने वाली एजेंसीज होती हैं वो आती हैं, या काउंसलर्स आते हैं वहाँ पे जो स्टॉल्स लगाते हैं, या फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आके वहाँ पे स्टॉल्स लगाती है। पर मुझे लगता है कि ये जैसे हम बोलते हैं ना कि जो स्टूडेंट कॉलेज में है उसका इंडस्ट्री विजिट्स होने चाहिए, इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक स्कूल के बच्चे का यूनिवर्सिटी विजिट होना चाहिए। दे शुड गो, दे शुड बी एबल टू फील द कॉलेज। एंड मेरे यहाँ जब भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि सुनो, ये करण जौहर के पिक्चरों वाला कॉलेज कहीं नहीं होता। You got to be studying and you got to be going ahead with that. It's not only a canteen and dance and drama happening and affairs and breakups happening at the school college. तो वो थोड़ा myths जो generate होती है उनको break करने के लिए एक direct intervention could be really great. Yeah. In fact, since you brought it up, you were in the US teaching there as well. Now, when a child, is planning to go abroad, I'm talking about post-school, that he or she has done their schooling here. Now they have to make a decision, whatever discipline that they might be going, and they have to make a decision whether they want to pursue it in India or they want to go to US or any country for that matter. How do you think they should make a decision that whether to go abroad or study here? Okay. See, there are different factors जिस पे ये depend करता है. I remember one of my friends calling me up. This is around 7-8 years back.
एंड शी सेड कि मेरे बेटे को 97% मार्क्स आया है, उसको स्टीफेंस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं? तो मैंने बोला स्टीफेंस तो मुश्किल है, बिकॉज दैट टाइम एडमिशन जो है वो परसेंटेज में होता था, अभी तो CUET में होता है। तो शायद स्टीफेंस नहीं मिलेगा। मैंने कहा तो अप्लाई करके देख ले, बट आई एम नॉट श्योर कि मिलेगा बिकॉज थोड़ा टफ है। तो शी सेड अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको बाद में मिली दोबारा, तो मैंने उसको पूछा, शी सेड नहीं, उसका स्टीफेंस में नहीं हुआ। मैंने कहा देन, कहते आई सेंड हिम अब्रॉड। ओके। मैंने उसको अब्रॉड भेजा बिकॉज कई लोगों के लिए ऑप्शन इतना क्लियर होता है कि या तो तुम इधर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो तुम बाहर जा रहे हो। तो कोई सिंगल रीजन नहीं हो सकता ये डिसाइड करने का कि आपने अब्रॉड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अंडर ग्रेड क्वालिफिकेशन के लिए एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है, तो उसको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसका सोशल सिस्टम वहाँ पे कोई है कि नहीं है। ओके। क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि एक बड़े कंपैशनेट एनवायरनमेंट में आप ग्रो कर रहे हो। अब्रॉड का जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टीचर्स कंसर्न है, बट आपको अगर किसी तरह का एक वो इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आपको नहीं मिलती है, इट कैन बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर Okay. you to sustain there. I'm not challenging people saying that no, you can't go and settle down somewhere all by yourselves. But I think एक undergrad जो student होता है, उसकी requirements थोड़ी different होती हैं। तो एक social system वहाँ पे होना चाहिए। I know a lot of people जिनके school के बच्चे जो हैं वो usually they go to a particular place or some particular universities. तो वो जब जूनियर्स वहाँ पे जाते हैं, उनके पास हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एंड दे रियली डू दैट काइंड ऑफ एन हैंड होल्डिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। Okay. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया के अंदर जिस तरह के कोर्सेज एक स्टूडेंट करना चाहता है, हो सकता है वो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में हों और उनके अंदर सीट्स बहुत कम हों। तो अगर आपको वहाँ मौका नहीं मिलता और आप उस तरह के कोर्सेज पे जाना चाहते हो, बिकॉज यू हैव अ काइंड ऑफ अ गाइडेंस कि आप अगर ये करोगे फ्यूचर के पर्सपेक्ट से ये कोर्सेज आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं, तो फिर वो स्टूडेंट बाहर जाएगा और वो उसके लिए काम करेगा, एंड दैट स्टूडेंट विल लुक इनटू इट। सो डिपेंड्स अपॉन के रीज़न क्या है आपका बाहर जाने का और किस तरीके से आप उसको आगे लेके चलते हो। बट सोशल सिस्टम, सोशल एलिनेशन कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो उसके लिए एक छात्र को हमेशा तैयार रहना चाहिए, बिकॉज 4 साल के लिए आप बाहर जा रहे हो। योर पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट काइंड ऑफ इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू कम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बी विद यू। मोस्टली वहाँ पे हाउसिंग जो सिस्टम्स होते हैं, स्टूडेंट हाउसेस जो होते हैं, वहाँ पेरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन दैट टर्म, डिपेंडिंग अपॉन आई थिंक बैलेंस करना चाहिए। बाकी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपरली जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर करना चाहिए। There are many universities which are coming up with excellent courses with futuristic vision. हमें उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम उसको वैल्यू करना चाहते हैं। Okay. So basically, you put a lot of emphasis on your social circle या फिर कुछ social connection there that should be there. Let's say if I'm planning to go to the US, preferably I should take this into consideration whether I have people there or someone up to reach out to in case of any issue or anything for that matter. कुछ एक social connect होना चाहिए, if I have understood it correctly. I'm talking more in terms of an undergrad student Okay. who is 18 years old. Okay. And I'm also talking more in terms of emotional stability or anchoring that the student will find there. Okay. Okay. Social circle बन जाता है। Correct. In the sense कि आपको अपने देश के लोग मिल जाते हैं, देश के नहीं मिलते तो आपको अपने कॉन्टिनेंट के लोग मिल जाते हैं। तो वो उस तरह के सर्कल्स आपके बन जाते हैं वहाँ पे, है ना। बट इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एंकरिंग के लिए आपके पास एक कुछ प्लेस होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि people mean business. After working hours nobody is available to you. तो वो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, that is important. Okay. Understood. Now if we talk about technology currently, so many now online education has become a thing. Artificial intelligence is coming to picture. Do you think there will come a time, which is not very far, let's say 7 years, 10 years down the line,
where uh, this the need of having a teacher maybe may become extinct. Do you think it will happen? Never. It Okay. will never happen. Because वो तो जो बच्चा किताब पढ़ सकता है, you're talking about availability of resources. ठीक है? Correct, yeah. तो जो बच्चा किताब पढ़ सकता है उसके लिए टीचर आउट है. Hmm. बहुत सारे Yeah. बच्चे पढ़ सकते हैं. Yeah. You are actually talking about self learning modules या self learning modes, जो कोई व्यक्ति AI से पढ़ सकता है या YouTube का वीडियो खोल के YouTube पढ़ का लिया, वीडियो कोई खोल के कोर्स पढ़ खरीद सकता है, लिया. कुछ भी कर सकता है. तो अभी हम टेक्नोलॉजी को फॉर द टाइम बिंग हटा देते हैं, डिजिटल को हटा देते हैं. हम एक नॉर्मल क्लासरूम की बात करते हैं 20 साल पुरानी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी. मेरी क्लास की बात करते हैं 86, जब मैंने 12th किया. तो किताबें जिसको पढ़नी आ रही है वो छोड़ दे स्कूल को, वो टीचर को हटा देता. पर टीचर नहीं हटा, क्योंकि टीचर आपको कंटेंट डिलीवरी नहीं दे रहा. कंटेंट तो किताब के अंदर है. करेक्ट. और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये टैलेंट है कि वो उसको समझ लेगा, उसको आगे चला जाएगा. टीचर जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड. तो अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उन 40 बच्चों को कैसे समझाती हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना. करेक्ट. तो इसके लिए मुझे उन 40 बच्चों को समझना पड़ेगा. तो वो काम AI को करने में बहुत वक्त लगेगा. कि जो व्यक्ति आ रहा है वो उसके हिसाब से उस मॉड्यूल को बनाते सो बेसिकली आप इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कनेक्शन को एम्फसाइज कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड. एक बच्चे को समझना जो है, अब सपोजिंग हम कहेंगे नहीं ये तो AI भी कर सकता है. AI ने अपना कुछ मॉड्यूल बना दिया, ठीक है, AI पढ़ा रहा है उसको. अब भाई उसको कैसे पता है कि इस बच्चे के घर में शादी है? उसको नहीं पता, है ना. तो वो बच्चा जिस एक्साइटमेंट के साथ क्लास में बैठा हुआ है, वो एक्साइटमेंट टीचर तो गेज कर रहा है कि आज इतना एक्साइटेड क्यों है. आपको पता है शाम को मेरी बहन की शादी है. इट्स लाइक दैट. अब उसका माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है. AI क्या करेगा, 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे अच्छा लगता है, आपको डायग्राम अच्छा लगता है, आपको ये लगता है, आपको ये लगता है ना. हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे AI ये भी पूछ ले. यू रिमेम्बर दैट मूवी, वो चिट्टी वाली, है ना, उसमें इमोशन डाल दिया था. तो फिर अगेन बिकॉज वो इमोशन भी तो मैकेनाइज ही होगा ना फिर. तो ये मुझे तो टीचर्स को लेके किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि जो चाइल्ड स्पेसिफिक लर्निंग है वो टीचर उसको बड़ा इजीली पढ़ा सकता है. Understood. बट इफ आई हैव 1 more minute, I want to add to something over here, that डिजिटल एजुकेशन जो डिजिटलाइज होके आ रहा है, ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मच नीडेड काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेसिबिलिटी. तो अगर हम इसके अंदर क्वालिटी प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं जिसमें वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकता है, सीख सकता है, अपग्रेडिंग कर सकता है, स्किल अपग्रेडिंग कर सकता है, तो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट मोड जहाँ पे स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको आगे लेके आगे चल सकता है. कोविड के टाइम पे हमने देखा, ऑफ कोर्स देयर वर नो रेगुलर स्कूल्स और समथिंग लाइक दैट. तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी वो एक सेपरेट इशू है, वहाँ पे डिजिटल डिवाइड आया, लोग नहीं पढ़ पाए. लेकिन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फिनोमिनास वाज, जो मैंने ऑब्जर्व किया वाज कि जो स्टूडेंट्स सेल्फ रेगुलेटेड थे उन्होंने फिर अपने ही घर में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उनको सीखने के लिए अब वो टाइम का एक्सपेंशन मिल गया कि मैडम तो 45 मिनट ही पढ़ाएंगी, बाकी टाइम तो हम घर पे ही है ना. तो 2 घंटे का स्कूल चल रहा है, 3 घंटे का स्कूल चल रहा है. उन्होंने उस टाइम को सेल्फ ग्रूमिंग के लिए एंगेज किया और वो किया. तो क्रिएटिंग अ सेल्फ लर्नर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. और अगर वो चीज़ हम कर पाते हैं, उसके बाद टीचर अगर को तो एक्चुअली वही करना चाहिए. उसके बाद वो बच्चा डिजिटल माध्यम से सीख रहा है, AI से सीख रहा है. चैट GPT के बहुत सारे पॉजिटिव यूज हैं, लेकिन अगर हम उसको केवल प्लेजरिज्म के लिए यूज करेंगे तो वो हम अपनी एबिलिटी डेवलपमेंट में गलती कर रहे हैं. हम नहीं ग्रो कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल. तो आई थिंक वो सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट को किसी भी अपकमिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें गाइड करना होता है, उनको समझाना होता है और उनको ये बताना होता है कि आप जब चैट GPT से बना के लाओगे. मैंने अपनी मास्टर्स लेवल के क्लास में, रिसर्च के क्लास में कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाने को दी थी, और एक प्रेजेंटेशन जब सामने आई तो मेरे साथ 2 स्कॉलर्स भी थे वहाँ पे. उन्होंने कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रेजेंटेशन. तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा इसमें रेफरेंसिंग नहीं है, ये नहीं है. हाँ मैम, वो समथिंग दे स्पोक अबाउट इट, लाइक समथिंग. तो फिर उसके बाद ना बाद में वो एक स्कॉलर ने जाके घर पे चेक किया, उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है. कह रहे आपको पता है वो
पावर पॉइंट जो है वो चैट जीपीटी से GPT बनी हुई थी। मैंने कहा वो देख के पता चल रहा था, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज थॉट अगर बच्चे के पास आ गया दिमाग में 4th क्लास में रिसर्च की, तो इसका मतलब तुम्हें जरूरत ही नहीं है रिसर्च जरूरत पढ़ने नहीं की। तो वो चीजें पता चल जाती है देखने से कि आपने कब कॉपी किया, कब क्या किया, तो वो Got it. चीजें भी स्टूडेंट को बतानी जरूरी है। Got it. Which brings me to the next question, and that is, what do you think is the difference between an impactful teacher and a non-impactful teacher? Well, I don't think there is something called a non-impactful teacher. Every teacher leaves Less an impact. impactful, maybe less impactful. I think every teacher leaves an impact. Some teachers leaves a positive impact, other leaves you those lingering negative memories which you never want to go back to. तो स्टूडेंट को हमने अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया, वो मेरे को लगता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Okay. सब्जेक्ट को मैंने एक कंटेंट की तरह समझा एज अ टीचर, या मैंने उस सब्जेक्ट के साथ कुछ स्किल्स भी डेवलप करी। मेरा पर्पस ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 साल स्कूल में पढ़ाया एज अ फिजिक्स टीचर। अब मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए कि मेरे स्टूडेंट को कंटेंट याद हो जाए, या इसलिए कि वो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, जब वो सब्जेक्ट को पढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, प्रोसेस स्किल्स हैं, वो डेवलप होती हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जानना और समझना। अब हम रिफ्लेक्शन का वो करवाते हैं, शायद तुम्हें याद हो, ग्लास स्लैब रखते हैं, पिन लगाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। 8वीं क्लास 7वीं 8वीं में होते थे वो एक्सपेरिमेंट्स ना। तो ये पर्पस बड़ा ज़रूरी है जानने का कि ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लो ऑफ रिफ्लेक्शन तो वो जान जाएगा, वेरीफाई भी कर लेगा विद इन परमिसिबल एरर। बट एक इंपॉर्टेंट काम उसके अंदर हो रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो एक आंख बंद कर रहा है, दूसरे से पिन लगा रहा है, लाइन देख रहा है, चेक कर रहा है। तो उस बच्चे का साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है स्टूडेंट का। Correct. जब वो किसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका एक कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है, वो ये भी सोच पा रहा है कि मैं डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक बार को वो इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसको वो नहीं भी समझ पा रहा, या उसको समझ भी रहा है, बट साथ में वो ये भी समझ रहा है कि डेटा को मुझे ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारी स्किल्स वो स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर आता है। एक मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था जब हम ग्रेविटेशन पढ़ाते थे, तो मैं उनको बोलती थी, अच्छा बताओ अगर अर्थ के ऊपर 0 ग्रेविटी हो जाए तो क्या होगा? तो वो धीरे धीरे सोचना शुरू करते थे, फिर सोचते थे, अरे ये तो ये भी नहीं होगा, अरे ये तो ये भी नहीं होगा, अरे ये तो ये भी नहीं होगा। देन यू नो योर इमेजिनेशन, क्या आप लॉजिकल इमेजिनेशन कैसे आपकी जा रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। Correct. I think that's a very very valid point. And मैंने ये भी नोटिस करा है that जो टीचर्स, मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल मेजरली, जो टीचर्स ने मेरे को इनेबल कर दिया है, या एक उनका एक तरीके से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, तो मेरे को सब्जेक्ट भी अच्छा लगने लगा। Yes. जैसे अनफॉर्चुनेटली मेरे को कभी, आई बिलीव, मैथ्स के अच्छे टीचर्स नहीं मिले। दैट इज व्हाई आई हेट मैथ्स। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, ऑन द रिकॉर्ड, कॉलेज में मेरी मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई थी, जो 8वें सेमेस्टर में क्लियर हुई थी। Because I started hating the subject, and I believe that, I don't want to name any teachers, but school time pe I did not get good maths teacher. Yeah. For that matter, I hate the subject altogether. That is why the reason I asked you is because a teacher can play a major role in making or breaking that. Absolutely. For that matter, like computers, my teacher was like, I was very well connected to my computer teacher. In fact, अभी एक मेरी friend की शादी में मिले भी, तो मैम ने बताया, तो I went on to become an IT engineer for that matter. True. So एक टीचर का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. That is why I asked you that ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो probably टीचर्स को नहीं करनी चाहिए with their students. देखो, एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है मेरा इसको लेके, तुम्हें कभी स्टूडेंट को इग्नोर एंड अवॉइड नहीं करना चाहिए। Okay. वो स्टूडेंट जैसा है वो आपके सामने है। मेरी फिजिक्स की क्लास में 40% लाने वाला छात्र भी बैठा होगा, 80 लाने पे बैठा होगा, 95 लाने वाला भी बैठा होगा। मेरे लिए उन चारों की सोशल वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि जो फिजिक्स में 40% नंबर लेकर आ रहा है
वो कहीं और बेटर कर रहा होगा। एंड सपोजिंग वो किसी में अच्छा नहीं कर रहा, वो साइंस में अच्छा नहीं कर रहा, सोशल साइंस में अच्छा नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज ग्रेड 6 to 10, वो कहीं पर भी अच्छा नहीं कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो अभी सेल्फ को डिस्कवर करने के लिए उसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अगर मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्टूडेंट को अप्रोच करती हूँ ना, तो मेरे स्टूडेंट हमेशा मेरे साथ वो जो सोशल इकोलॉजी में क्रिएट करती हूँ अपनी क्लास के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं स्टूडेंट को इसलिए इंसल्ट नहीं कर सकती या मैं उसलिए उसको पनिश नहीं कर सकती बिकॉज वो मेरी इमेजिनेशन में फिट नहीं होता. So it's a problem of my imagination. It's not the student's thing, And this is one of the very founding principle for me when I do a lot of work in diversity and inclusion. So that's one of the, foundational premise of this entire discussion that, children are going to be different. Students are going to be different from each other. We respect them for what they are. If we are able to contribute, if we are able to change anything in those students for better, let's just do that. Otherwise, let them grow organically. हमें ज़रूरी नहीं है ये जो मतलब ये थोड़ा वियर्ड है, बट मैं ऐसे उदाहरण देती हूँ. कई बार हम लोग अंडमान निकोबार गए थे, तो वहाँ पे वी वर ट्रैवलिंग ऑन एन आइलैंड पे, कहीं हमारा लॉन्ग जर्नी था, दोनों तरफ फॉरेस्ट था उसके अंदर. तो अब मेरा थोड़ा अलग तरीके का ना वो रहता है, जैसा सबका अपना अपना परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का. मैं पेड़ को देख रही हूँ, अब वो ना वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन तो आया नहीं है, तो उधर वो पेड़ जो है वो जैसे मर्जी चाहे बढ़ रहा है, that own natural way of growing. किसी के एक दूसरे पे टहनी जा रही है, कोई थोड़ा ऊपर जाके टेढ़ा हो गया है. They were old trees, and when we were taking that particular thing, you come to a very beautiful garden जहाँ पे लोगों ने bonsais बनाए हुए हैं. मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, let the children grow organically. हमें उनके बॉन्साइज बनाने की जरूरत नहीं है. यहाँ से काट के इसको इतना छोटा कर दूं, इसको इतना बड़ा कर दूं. मैं एज एन एडल्ट इस बात को डिसाइड कर लूं कि ये कौन सी कटिंग में बेटर लगेगा, इसका साइज कितना होना चाहिए. करेक्ट. ये आई डोंट वांट चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड एज बॉन्साई प्लांट्स. लेट देम बी वेरी नेचुरल, वेरी ऑर्गेनिक. लेट देम ग्रो. And for that, the adults, everybody, like the parents, the grandparents, or the teachers, or the school principals, everybody need to have a lot of patience. And believe in the child and believe in that environment. कि बस मेरे बच्चे को गलत आदतें नहीं पड़नी चाहिए. That is important, that I want to be watchful about. Correct. He should not get into any kind of habits which are not good for his health or her health, or any kind of negative things. बाकी I think that's a very interesting point. That the whole idea of an educational establishment should be for that child to be able to figure out himself or herself. Absolutely. So that usko bonsai banna hai, mango tree banna hai, whatever they want to become, they make the decision rather than teachers or parents imposing that their ideas on that children. In fact, एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई. मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, तो वो बचपन से, जब से उनकी बेटी छोटी थी, उनके कान में बोलती थी तेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. एंड शी इवेंचुअली बिकेम अ डॉक्टर. एंड उनसे पूछा जाता है आप डॉक्टर बने क्यों? कहते पता नहीं, बस मेरे को ना सबकॉन्शियसली आता था. होता क्या था, जब वो सोती थी तो उनके कान में 15-20 मिनट रोज एफर्मेशन चलती थी, तेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. तो अल्टीमेटली शी बिकेम अ डॉक्टर. और उसे ये नहीं पता वो डॉक्टर बनी क्यों. That's interesting. ये मैं रील्स में बहुत देखती हूँ आजकल, है ना, ये गिफ्ट आना है, गिफ्ट आना है, गिफ्ट आना है, then वही रील्स आनी शुरू हो जाती है. So maybe it has an impact. तो I think अगर आप वो करना चाहते हो तो करो, साइलेंटली करो, है ना. बट बच्चे को वो प्रेशर फील नहीं होना चाहिए. That is something which is very very important for us to understand. Correct. Now, Dr. Vandana, let's talk about education and employment. How relevant is today's education in making an employable youth? I think quite a lot. अब इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट में देखो भाई, हम लोग इंडियंस कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हमारी एजुकेशन तो बहुत इम्पैक्टफुल है. इसीलिए So when you say education, are you referring to degrees and certifications? I'm talking about certifications to begin with. Okay. Certifications हमारे हैं better. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि हम उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो सर्टिफिकेशन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ग्रेडिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. बट यू विल ऑल्सो सी कि बहुत हाई ग्रेड होने के लिए यू डोंट नीड टू हैव लॉट ऑफ हाई ग्रेड्स टू बिकम अ
better professional in your life, you know, वो भी एक बड़ा interesting mismatch है बहुत सारी चीज़ों में. In fact, I tell you, this is personal story, you know. I called up a friend of mine for, I think college में हम लोग साथ थे, तो मैंने उसको काफ़ी दिनों बाद फ़ोन किया for some purpose, ऐसी generally. तो सर अच्छा क्या कर रही हो आजकल? और ये मेरे साथ 2 बार ही हुआ, which is like, in fact 3 बार हुआ. तो this person called up and he said कि मैंने कहा I'm teaching in the university and all that. He said, तुम तो बहुत एवरेज मार्क्स आते थे, व्हाट वर योर 64 65 टाइप्स इन द कॉलेज. मेरे साथ फिजिक्स ऑनर्स में थे. अच्छा. तो मैंने कहा हाँ इतना ही था मेरा. तो मैंने कहा हाँ इतना ही 65 66 रहता था कुछ. तो ही सेड एंड आई वाज सच अ हाई स्कोरर. मैंने कहा जी. कह रहा तू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कैसे बन गई? तो ये उनको कंफ्यूजन हुआ. फिर मेरी एक और दोस्त, उन्होंने कॉल किया, वो स्कूल से मेरे साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने भी पूछा कि अच्छा तू वहाँ पढ़ा रही है. ओके, उनकी फैमिली से किसी का एडमिशन होना था हमारे इंस्टीट्यूशन में. तो शी वाज आस्किंग मी कि हाउ डज इट गो एंड ऑल दैट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या एंड ऑल दैट. आई वाज जस्ट टेलिंग हर. तो उन्होंने तो ये बात नहीं कही क्योंकि उनको मालूम था मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ. उन्होंने कहा देखो किस्मत होती है अपनी अपनी. मैं तो टॉपर थी, और वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, टॉपर थी मैथमेटिक्स की. तो शी से देखो मैं तो टॉपर थी, आज मैं कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में पहुंच गई. तो मैंने कहा भाई तुम टॉपर थी, तुम्हें तुरंत नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी ही नहीं मिली तो मैं पढ़ती गई एंड वहां पहुंच गई. तो ये लोगों को जो शॉक लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें वो प्री डिटर्मिन्ड स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिप्शन में चल रहे होते हैं. अब पेरेंट्स एंड एडल्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? पेरेंट्स एंड एडल्ट्स के साथ यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. ओके, बट कमिंग टू जो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन था, दैट वाज अगर आज हम लेट्स से ओके 4 साल की हम आईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीएस इंजीनियरिंग स्पेसिफिक चीज़ें कर रहे हैं, तो there was a time that these disciplines used to be considered कि यहाँ पे तो आपकी जॉब लग ही जाएगी. But now if we see engineering as well, there was a report recently that some X percentage of even children from IIT, they did not get jobs. Now when we talk about STEM की अगर हम बात ना करें, हम दूसरे disciplines में आए, तो what is the scope of having a good job after you complete your bachelor's, masters or even PhD for that matter. इनफैक्ट अभी एक गुजरात में या कहीं पे किसी बैंक ने पियोन की नौकरी निकाली थी एंड वहाँ पे 10,000 एप्लीकेंट्स पहुँच गए, विच इवन हैड पीपल हु हैड डन देयर PhDs. So don't you think there's a disconnect between what these people are studying in their masters or higher studies versus what the industry really needs them to have? See, your question is not singular. It has a lot of issues related in it. Okay, so let's try to understand. I'll divide it into 2 parts. The first part is about people with higher qualifications. Let that be the second part. With people with higher education coming to higher qualifications coming to a post or applying for a post which does not require so much of education. And the second one, the first one I want to take is about what is the possibility of getting into a job sector. Okay. Now let's understand that there are things where diversification is very quickly happening. Every 4 years, the job requirement in the market is changing. All right. So the professionals, for example, IT, you took that example of IT. I think in the last 10 years, you would have observed a diversification in the profiles of the job that are required. वो diversification जो है उसके लिए आपको मार्केट के साथ अपडेटेड रहना है, because it is not about your qualification or the place where you have studied. It is about your job profile where you have entered now. तो आप जिस जॉब फील्ड के अंदर एंटर किए हो, आपको उस जॉब फील्ड के लिए हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा. वहाँ के फ्यूचर फोरकास्ट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए. अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करोगे इन दैट चेंजिंग टाइम, तो आप कहीं ना कहीं जाके स्टेगनेट होगे और फिर आप जिसको बोलते हैं आप सिस्टम से भी आउट होगे, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. फॉलो अप देयर, व्हेन यू से अपस्किल नहीं करोगे, सो इज इट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दैट इंडिविजुअल? नो, आपने जब एजुकेशन आपने कहीं से अपना 4 साल का बीटेक कर लिया, ओके, अब नाउ यू आर विद द एम्प्लॉयर.
हम्म, अब आपने नौकरी करना शुरू कर मैं दिया। नौकरी से पहले वाली स्टेप की बात कर रहा नौकरी से पहले वाला जो स्टेप है वहां पे देखो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हूँ। देर आर इंस्टीट्यूशंस जो जॉब मार्केट को समझ के अपने करिकुलम को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। Okay, is that तो allowed? Like हाँ या UGC? ऑफ Okay, कोर्स वेरी okay, मच अलाउड, okay, वेरी मच अलाउड। okay. यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर या हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारा एक प्रोसेस है और हम जब चाहें उस कोर्सेज को अपने अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली Okay, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। तो जो जो इंस्टीट्यूशंस उस तरह की फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ अपने स्टूडेंट को तैयार करता है, उसका स्टूडेंट की स्टेबिलिटी बेटर होती है मार्केट के अंदर, Correct. है ना। तो ये डेफिनेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जरूरत है कि वो अपने आप को चेंज करे और अपने आप को अपग्रेड करे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के फील्ड में देखो, टीचिंग का तो ऐसा है कि टीचर तो हमेशा चाहिए, बिकॉज स्कूल्स हमेशा चाहिए होंगे, लेकिन पॉलिसी बदली, पॉलिसी के साथ टीचर एजुकेशन सिस्टम बदला। तो हमारा इंस्टीट्यूशन जिसने जो 1947 में आ गया था, तो वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो दिसंबर 19 को, आप मानिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट होते हैं और उसके इतने कम ड्यूरेशन में नेहरू जी आते हैं जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, मौलाना आजाद जी आते हैं जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो टीचर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन चाहिए। दैट इज अस, वी वर फाउंडेड एट दैट पॉइंट ऑफ Okay. टाइम। उतने साल से हम लोग हमेशा बीएड करवाते आ रहे हैं। देन वी मूव्ड ओवर टू द मास्टर्स प्रोग्राम एमएड, वी मूव्ड ओवर टू डूइंग पीएचडीज आल्सो। तो हमारे पास हमेशा कौन सा स्टूडेंट आ रहा है? हमारे पास हमेशा आ रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद Okay. स्टूडेंट, ठीक है। रिसेंटली पॉलिसी जो मैं आपको कह रही हूँ 2020 में पॉलिसी आई, 2020 की पॉलिसी ने क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया स्कूल के, तो उसने स्कूल टीचर्स को पढ़ाने का तरीका भी बदला। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आई कि 12वीं के बाद अगर एक स्टूडेंट इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आईटी प्रोफेशनल बन सकता है, बिकॉज बहुत सारी कोर्सेज की जो क्वालिफिकेशन है वो 12th के बाद आप उसके अंदर मूव कर सकते हैं, तो वो टीचर क्यों नहीं बन सकता? तो 12th के स्टूडेंट को अब एक नया प्रोग्राम आया आईटेप करके, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 12th का स्टूडेंट जो है वो आ सकता है उसके अंदर। इट्स अ ड्यूअल डिग्री, ड्यूअल मेजर डिग्री। वो हमारे इंस्टीट्यूट ने करना शुरू किया। तो इंस्टीट्यूट के अंदर काफी रेजिस्टेंस रहा। Okay. लोगों ने कहा कि हम तो इतनी बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये 12वीं पास के 16-17 साल के बच्चे हमारे पास आएंगे, हम इन्हें कैसे डील करेंगे? तो वो रेजिस्टेंस जो है वो इस बात को दिखाता है कि हम चेंज के लिए तैयार हैं कि नहीं है। पर इंस्टीट्यूशन अगर डायनेमिक नहीं होगा तो वो इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना ही रिनाउंड रहा हो हिस्टोरिकली, लेकिन इवेंचुअली फिर वो आउटडेट होगा और वहां की रेपुटेशन भी आउटडेट होगी। तो डेफिनेटली विद इन द इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि वो करें। अगर कोई ऐसा कोर्स है जिसको आप नहीं बदल पा रहे हो, तो आपके पास पेडागोजिकल फ्रीडम होती है, आप उसकी वर्कशॉप्स करवाओ, आप स्टूडेंट के लिए बाहर से लोग बुलवाओ और आप उनको इंडस्ट्री से इंडस्ट्री जो भी व्यक्ति है, देखिए इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री और से ना हो, कोई फ्रीलांसर हो सकता है। हमें नहीं पता ना कि कौन व्यक्ति हो सकता है, बट आइडेंटिफाई द करेक्ट रिसोर्स और अपने छात्र को वहां पे लेके जाए। स्वयं पोर्टल पे बहुत सारे ऑनलाइन मूव्स और बहुत सारी और चीजें हैं, तो टीचर अपने स्टूडेंट को बताए कि देखो वो जाके फ्री में कोर्स कर सकते हो, दिस विल ऐड वैल्यू टू यू। तो टीचर का जितना कंटेंट जानना जरूरी है, उतना ही रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज को जानना भी जरूरी है, जो वो कॉन्स्टेंटली अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता रहे। मैं आज भी many of the students who have passed out, they stay connected and they're like, anything new that I can do, I said yeah, of course you can get onto this and you can do this, this will add value to you. वो important है, that is very very important. Got it. So so when we talk about, since you brought it up, that a lot of institutions are, you know, upgrading themselves constantly, they are introducing new things, so is it safe to say that having, you know, developing a skill or focusing on skill development within the university is more valuable than having a piece of degree or the certificate? Till the time changes for degrees, you know, till the time you don't ask me for degrees, yes, you can say that, it is safe to say. But you know, currently skill development has become one of the very major part of government initiative. Correct. Yeah. We have this whole new ministry of skill development which has come up, you know. Yeah. It is offering courses of skill development in more than 21 fields, you know, which includes you know, agriculture to beauty culture to every other kind of, you know, the 21 areas that have been identified by this
a particular industry. And that brings me to the second part of the question. We shouldn't miss on to that overqualified people are kind of, joining onto it. See, we need to understand, again, I'm talking about the aspirations, that why I cannot do PhD. I should have the opportunity to do that. Definitely, you should have the opportunity to do that. I would never say that opportunity should be limited to any particular group or segment of people. Definitely, yes. But are you sure you want to do that? What is the reason for you to do that? If you say that it is my passion for which I'm going for higher education, then don't ask for employment. It was passion that took you over there. And passion may not lead to earning money. Correct, yeah. That is something which we need to very categorically understand. Now, if you wanted to do something for employability, please find out the job market and figure out. There are research scholars in University of Delhi who are pursuing their research. They may not have a job in time to come, because especially Delhi University has really done a lot of recruitment in the past 2 years. Because we wanted a stability in the university, our leadership is very strongly looking forward to having a stable, faculty profile in all the colleges that we have. So I think these are the kind of things which one needs to understand. I've been telling everybody who's coming over for, doctorate program, I said, Delhi University is not going to offer you a job in, next 10 years. We are full. People have to retire to be able to do that. So you understand that kind of, risk, and then you come for research. ऐसा नहीं हो कि तुम 5 साल में अपना रिसर्च खत्म करो फिर बोलो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ, अपने आप को ओपन रखो एंड लुक अप फॉर जॉब्स एट एवरी अदर प्लेस. तो आपके जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना. तो जो अगेन मैं बोलती हूँ जो इनिशिएटिव वोकेशनल एजुकेशन को लेकर आया है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया इज द यंगेस्ट, इट्स गोइंग टू बी द यंगेस्ट नेशन इन 2030. हम पूरे विश्व के अंदर यंगेस्ट होने वाले हैं, हमारी पॉपुलेशन यंगेस्ट होने वाली है. दैट ऑल्सो मीन्स के सब्सिक्वेंटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी द ओल्डेस्ट, बिकॉज जो अभी यंगेस्ट हैं वो इवेंचुअली 20 साल बाद ओल्डेस्ट हो जाएंगे हम लोग. लेकिन आई थिंक वो उतने सारे यूथ को करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर किसी को एजुकेशन चाहिए. दैट इज वेयर पॉलिसी कम्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कि वो बोल रही है कि आइडेंटिफाई योर सेल्फ ऑल्सो. Understand that passion and employability are two different things. If you are pursuing something, there is an opportunity, there are n number of universities. आप जाएं, आप वहाँ पे जाके मास्टर्स भी करें, आप वहाँ पे जाके PhD भी करें. यदि आप चाहते हैं, आपका सिलेक्शन होता है उसके अंदर, आप प्लीज करें उस बात को. लेकिन आप ये भी समझ लें कि उसमें जॉब सेक्टर में वो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है. तो मेरिट, जो एकेडमिक मेरिट है, जिसकी वजह से आपने एक डिग्री को परस्यू किया और आपने उसको कंप्लीट किया, वो जरूरी नहीं है कि उस फील्ड में उतनी नौकरियां भी हों. तो इस बात को समझाना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसलिए मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है. उसके अंदर बहुत सारे स्किल्ड लोग चाहिए हमको. तो यूथ को अगर हम वोकेशनलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रमोट कर सकते हैं तो वो, और साथ में ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, तो आप अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू रखिए, तो आप इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप प्रोफेशनली अपस्किल भी हो रहे हैं, और सब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं. बट ये विजडम एक इंडिविजुअल को कौन देगा? वहां स्कूल का फिर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप स्टूडेंट की काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको कैसे बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू बिकमिंग ABZ, योर लाइफ इज मोर ब्रॉडर, एंड वेयर यू नीड एवरी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी. आई थिंक सो दीज आर द challenges which one needs to look up and be very realistic about the situations. Got it. So अगर हम बात कर रहे हैं, अभी recently you had gone to Russia for BRICS की कोई conference थी. So what was the objective of that conference? Why did you go there? What were some learnings for you, or like for the audience, if they can learn from things that happened there? So BRICS is a forum. It's technically a political forum. जो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, which is Brazil, Russia, India, China and South Africa. That is BRICS. अभी ये हो गया है BRICS प्लस, जिसमें 10 कंट्रीज हो गई हैं, 5+5 और कंट्रीज जुड़ी हैं इसके अंदर. इस फोरम के बहुत सारे सबसेक्शंस हैं और ये एक इस जोन में ही ऑपरेट करता है. सो it's a lot of Eurasia kind of a zone, where
it is operating, this entire thing is operating. I went for BRICS Civil Forum, जहाँ पे एक स्पेशल सेगमेंट उन्होंने लिखा था कि हाउ एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर सिचुएशन in the country, specific countries. तो ब्रिक्स के जो 5 प्राइमरी होल्डर्स हैं उन्हीं के साथ ये काम हुआ, वो वहीं से रिप्रेजेंटेटिव्स थे अभी इसके अंदर. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग इज के एजुकेशन हर जगह रेनोवेशन मांग रही है, हर जगह दे आर Okay. आस्किंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग. सो दैट्स समथिंग विच वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इन 5 कंट्रीज की बात कर रही हूँ. आई डोंट वांट टू टेक द डिस्कशन बियॉन्ड दैट, बिकॉज आपने कहा वहां से क्या लर्निंग्स हुई हमारी. ये भी समझ में आया कि गवर्नमेंट इज वेरी इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग पीपल एंड एवरीबडी वांट्स देयर सिटीजन्स टू बी एजुकेटेड. तो वो एक इंटेंशन जो उसको हम बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल इंटेंशन, वो भी हमको. So when you समझ say में आती that countries want their citizens to be educated, like, or can you define education in this perspective? See, basically certification Okay. is important, but Employable? Sorry, Employable? employability के लिए I'll come to that. Okay, Give me okay, a moment for that. And also how the everybody felt. I don't know if I say that, how will it be taken up by the larger audience? There's a requirement to build the self of the people also. That morality, that value system, that connection with your nation, that devotion to your nation and commitment, all that is felt very uniformly in these 5 countries. And if you look at the 5 countries which I'm talking about, these are the countries of very different nature. Their political nature is very different. Their economic structures are very, very different. So we are not trying to kind of say that we all fall in the same grid. We have very different features with regard to that. But everybody felt the need of creating responsible citizens. And that is why I said, give me a minute and I'll explain you what does education mean. People want their citizens to be responsible for the growth and development of their country. People want that connect to be restored, And so that is something which is of significant nature. That what kind of education, क्या हमारी पुरानी education कुछ ऐसी थी जिसने व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया. Person became so individualized that उसका और social structure जो उसका societal जो connect था वो कहीं ना कहीं compromise हो गया कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया. Now I'm not quite worried about what happens to the society and then eventually what happens to my nation. तो वो एक common creating responsible citizens came up as one of the objectives of education also. Okay. Another important thing that came up, was about creating skill in the people. Somewhere down the line, past में जो चीजें है ना, जो एजुकेशन का पर्पस है वो बहुत ज्यादा टुवर्ड्स क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स हो गया. Okay. Correct. तो मुझे बेटर होना है एंड देन मुझे ये वाला प्रोफेशनल बनूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा इसके अंदर. This is a high paying job and things like that. I'll tell you a very interesting story. It's a short kind of a thing. I was so university people were with us, and this was this young boy, faculty है वो वहाँ पे, and he was with us and he was like कि हम ऐसे ही घूम रहे थे मॉस्को में. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि अच्छा घर का क्या, can you buy a house here or something? How expensive is the property here? तो he said कि मैं यहाँ पे घर नहीं खरीद सकता. He is a university professor. He said मैं यहाँ पे घर नहीं खरीद सकता. तो मैंने बोला क्यों, क्या है? कहता नहीं, मतलब it's a very expensive place. Moscow typically it's a very beautiful city but and very different kind of things. Then he was showing me, देखो ये वाले flats, ये वाले जो houses हैं, now people have started renting them out. They're living somewhere outside Russia. I'm in Moscow and they're renting out because they're getting good money out of it. So that was a part of it. But then he told me a very interesting part. There are 3 brothers. He said that when I went and told my mother that I want to be a teacher, she was so shocked. You want to be a teacher? Because teachers are comparatively, they are well paid, but compared to an IT professional or somebody, you want to be a teacher? And she said, my aunts came over and they were kind of paying a condolence to my mother. Oh, your son wants to be a teacher, things like that. So I think वो जो पूरा structure of societal structure है, जो आपकी employability को आपकी economic से जोड़ता है, वो
जो एक फैक्टर है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना और ये बोलना कि एम्प्लॉयबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग हाई paying jobs, and then eventually dignity of labor, understanding skills, being able to being able to do what do we say, productions in your own country. These are major challenges which the people are facing. Correct. That how do they become independent in terms of production, like Make in India Correct. effort that we have in India. So these are the major challenges, and if people in our own countries are not able to contribute to that, to that format of planning and organization, then how shall we think about it? Somewhere down the line, what happens is, I'll take 1 more minute to explain this. Somewhere down the line, what happens is, the counter argument is कि आप कुछ लोगों को बोल रहे हो कि वो केवल वोकेशनल एजुकेशन में, वो केवल स्किल्स में जाए, और स्किल्स में जो व्यक्ति चला गया वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा. तो वो जो एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, एंड देन इट इज सीन एज एन आर्ग्यूमेंट दैट वी आर बिल्डिंग इज कि ये आप क्लास वेरिएशन खड़ा करने के लिए बोल रहे हो कि कुछ बच्चे जो हैं, जो कुछ यूथ जो है वो केवल लेबर मार्केट में चला जाए और कुछ जो है वो मैनेजर बन जाए, क्वालिफाइड हो जाए. तो डिबेट ये नहीं है. डिबेट ये है कि जो जिस लेवल तक जा सकता है वो उस लेवल तक जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति यदि सेम लेवल तक जाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज उतनी ही लिमिटेड होती चली जाएंगी. तो इस चीज को अगर हम जिसको बोलते हैं, हम इसको डीमिस्टिफाई कर सकते हैं, तो शायद हम, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है, जो 20-22 साल का यूथ है, उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसको जो चीज़ समझाई जा रही है वो ज़्यादा आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उस तरीके से वो आगे देखे इसको तो बेटर होता है. ओके, इंटरेस्टिंग. आई थिंक काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स मुझे जानने को मिले फ्रॉम व्हाट यू जस्ट सेड, एंड बहुत मज़ा आया सुन के. Which brings me to the final question. You as a teacher, what do you think is the biggest impact you have created on someone's life, or any student that has been remarkable, जिसको सोच के आपको लगे कि यार ये एक मेरा स्टूडेंट था, इसको I was able to guide like this or that and they have achieved something tremendous. Any such story that you'd like to share? All of them. Okay. All of them. Specific. I'll share this with you. That's 2 weeks ago. PhD scholar of mine came with the family. His mother was there, and sister, wife, his daughter. They all came to visit me, and we were just talking. So his mother said that, आपने इसको क्या बताया, आपने इसको क्या ट्रेनिंग दिया है? मैंने बोला क्या हुआ? कहते ये रुकता ही नहीं है, ये बोलते ही चला जाता है. अब He speaks so much, और वो स्टूडेंट मुझे बोलता है, वो स्कॉलर मुझे बोलता है कि आपकी पहली क्लास थी जिसके अंदर वो एमफिल में आया मेरे पास. इनफैक्ट तो ही हैड डन लॉट ऑफ थिंग्स अर्लियर, और सारी यूनिवर्सिटीज उसने विजिट करी हुई हैं, मल्टीपल, हर एक यूनिवर्सिटी से उसने एक डिग्री लिया हुआ था. तो वी यूज्ड टू टेल हिम कि भाई मतलब तेरा फाइनल डेस्टिनेशन ड्यू में था, वो भी हो गया. ऑल प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैड टेकन 1 डिग्री होती जाता. तो ही सेड के your class was the first space where I kind of, I learned to speak because I felt that opportunity that I can share. Okay. A lot of other people, in fact, this year I was teaching B.Ed students, and there's a mixed class. It's around 40 students. लड़कों ने मेरी क्लास, and boys and girls both are there. लड़कों ने मेरी क्लास में फाइनल डे पे ये बोला, we felt that you listened to us. वी फेल्ट दैट स्पेस आपकी क्लास में, नहीं तो लड़कों को स्पेस ही नहीं है बोलने का. आई वाज लाइक चलो दैट्स रियली ग्रेट. तो आई थिंक impact that I have made on people's life, or it's again a collective effort. It's like please be a good listener. आप सुनो लोगों को, and please have faith in whoever comes in front of you. It's very important that you have that faith in that person. वो व्यक्ति आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, आपका मैनेजमेंट भी हो सकता है, who may be very rude to you at times, but you please listen to them and come up with that kind of thing. There is one thing which I always tell people, and a lot of people are kind of getting onto it, that देखो disagreement होना तो एक
प्रेजेंस इट सिग्निफाइज के हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस है, तभी मेरे पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है या किसी दूसरे व्यक्ति के पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो डिसएग्री करना तो एक तरह का एकेडमिक प्रोसेस है। डिसएग्रीमेंट जो है वो कभी भी डिसरिस्पेक्ट को लीड ना करे। तो जो हमारा कॉग्निटिव बीइंग है जिसकी वजह से हम डिसएग्री करते हैं, वो कॉग्निटिव बीइंग कभी भी हमारे पर्सोनास को इतना इम्पैक्ट ना कर दे कि हम पर्सनल लाइफ्स में एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए। तो वो एक बहुत बारीक लाइन होती है। इनफैक्ट मैंने इससे पहले एक कनाडा की यूनिवर्सिटी के साथ एक पॉडकास्ट किया, उसमें माइक्रो एग्रेशन के ऊपर बात हुई। तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम द एपिसोड्स कि किस तरह माइक्रो एग्रेशंस इकट्ठे हो के दे गिव राइज टू अ कन्फ्लिक्ट, और वो कन्फ्लिक्ट से फिर एक मेजर सिचुएशन आती है जो कि एक वॉर फुटिंग पे हम उस पे चले जाते हैं। तो डिसएग्री होना इम्पॉर्टेंट है, डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। डिस्कशन जब आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटाइज होनी शुरू होती हैं। अब ये सिचुएशन आज के टाइम पे क्लासरूम में भी आ रही है। स्कूल क्लासरूम्स में टीचर्स आके बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं। तो मुझे हमेशा उनको ये बोलना पड़ता है, स्टूडेंट नहीं आर्ग्यू कर रहा, आर्ग्यू आप कर रहे हो। आप एक काउंटर पर्सपेक्टिव को एक हेल्दी डिस्कशन में रखो। आप उसकी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। वो तो बच्चा है ना जो आपके सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो वो सारी चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एज कोर वैल्यूज हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। When my kids tell me, like I call them kids, but they are big people, when they tell me that you don't judge, so I said, are you learning that you stop judging people? And they say, yes, we are learning that. So I think those are the kind of impacts which I'm very, very hopeful that they bring a kind of harmony in the society. Despite the fact we are different from each other, we learn to co-live, and we learn to be. In fact, मैं coexistence word use करती थी। मेरे एक नए कोलीग आए हैं जिन्होंने co-living वर्ड को कहना शुरू किया, तो मुझे बहुत पसंद आया ये शब्द, और मैंने कहा हाँ ये बेटर है। कोएग्जिस्टेंस तो लगता है मैं और आप एक साथ में बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। को लिविंग में वो आइडिया आता है कि मैं और आप एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक I mean, if that answers your question, yes. That was phenomenal, Dr. Vandana. And I had a great time listening to you and your phenomenal stories, the impact that you have created in the education sector, and the perspectives that you brought to this discussion. They were really, really amazing. So I keep, I look forward to keep learning from you. I've been learning from you for almost 25 years now. For people who might not know, she's my aunt. I just disclosed it. So yes, thank you so much for coming to the Impact podcast and for sharing wonderful stories. Thank you. Thank you so much. I enjoyed the whole process. Thank you.